The two performers for today's concert are Meghna and myself. So over to Meghna. Meghna is going to be the anchor today. So I think everybody knows Meghna. Meghna को introduce करने की जरूरत तो नहीं है. But she has been a very wonderful person. मैंने तो जो थोड़े दिनों में लास्ट में इंटरेक्ट किया, एक दो बार प्रैक्टिस किया, हमने डुएट्स प्रैक्टिस भी किए. She is really a gem of a person. मतलब such a humble person. मैंने जो गाने बोले, she is going to sing only. She has selected only those songs. कुछ भी एक बार भी नहीं बोला कि ये वाला नहीं गाऊंगी मैं. जो गाने मैंने बताए, she selected only those songs. But she is such a sweet person. So she joined us somewhere in April, I suppose. April May में join किया था इन्होंने. So over last 6 months she has been with us. Off and on she has been joining. मतलब quite regular. कभी बीच में बंक मार देती हैं, but otherwise amazing. She is an amazing singer. आज सब लोग देखते हैं हम लोग. And she, let me tell you, she's a blog writer. She writes blogs. बड़े powerful blogs लिखती हैं ये. मीडियम है, एक मीडियम है इनका. उसके ऊपर आप जाएंगे साइट के ऊपर तो you can see her blogs. Very so very emotional, very bold subjects. She chooses some really emotional subjects. और बहुत अच्छा लिखती हैं. And I've been trying to convince her to write a book also. Or she will write. Definitely she will write. She writes very well. ब्लॉग का लिंक दे देना राजेश. Medium, yes. Definitely, I'll give. बहुत बढ़िया लिखती हैं. Amazing. She's an amazing blog writer. And she's share कीजिएगा सर ब्लॉग का जो. Definitely. I'll share. तो over to you, Meghna. All the very best. Join किया. But before I begin, I really want to share. ये मैंने कुछ हफ्तों पहले राजेश जी से भी शेयर किया था. That I've been going through a very difficult time पिछले 1 साल में, और इनका जब इनवाइट आया था to be a part of this group, तभी I was very unsure कि मतलब पता नहीं unknown लोग हैं, join करना चाहिए नहीं करना चाहिए. ऐसे पहले मैंने कभी किया नहीं है तो क्या exactly क्या होगा. But first time जब मैंने join किया, I had a completely different confidence about myself. तो जब difficult phase होता है तो usually अपना confidence एकदम low होता है, and you are in a very low space, you're not feeling good about yourself. But ये space में वो इतना power था that I started feeling good, I started getting my confidence back. So I keep telling him that I will be very grateful to this place for forever, क्योंकि एक difficult time में मुझे इसने ऊपर उठाया है. So thank you so much for this space. Okay, so I'm going to try Rajesh ji anchoring today. So आज का theme is romance, और राजेश जी और मैं सोच रहे थे कि कौन से रोमांटिक गाने गाए जाए, किस टाइप के गाने गाए जाए. And we realize कि रोमांस के अलग-अलग emotions होते हैं. So we are going to start with this emotion of attraction, how attraction feels in romance, and the songs that we have chosen are songs that are individually close to us, like we relate to these songs. So we'll start with the first segment, which talks about what we feel about attraction. So I'll start. All the best, Meghna. All the best, Meghna. बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरी सी मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से दिया दूर भागे, बावरी से बावरे झरोखों से बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चला एक सपना,
बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो, बावरी सी धुन हो कोई बावरा एक राग हो, बावरी सी धुन हो कोई बावरा एक राग हो, बावरी से पैर चाहे बावरे तरानों से, बावरे से बोल पे थे रखना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना। Beauty. Great. Super. Acha, what we'll do is in this segment, we'll keep the comments after the segment. Both the songs are over, then we'll give the comments. You can only appreciate after the first song. Okay. Meghna. So we'll start with you, Rajesh ji, abhi. Yes. Okay. So, chalo, let me start. Okay, Rajesh ji, all the best. Thank you, Bimal ji. Thank you so much. All the best, sir. All the best. Thank you, sir. All the best. All the best. All the best, Rajesh ji. Thank you. रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लटों में
काली घटा का बसेरा, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यूं तो हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। Thank you. Meghna, you have to take over. You are the anchor. भूल जाती हूँ मैं, सॉरी। चलो, कोई रिमाइंड करवा दिया मैंने। So we'll open out for comment. राकेश जी। सबसे पहले आपकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं मेघा। मतलब आप बिल्कुल एक सधे हुए कलाकार, एक ट्रेंड सिंगर की तरह गाती हैं। आवाज में इतना ठहराव है और मेरे ख्याल से जो गाना भी आपने चुना है वो बहुत मुश्किल गाना था। इतना इजी गाना नहीं था वो, लेकिन आपने बहुत खूबसूरती से निभाया है उसको और बहुत ही अच्छा गाया। रियली थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग। और राजेश के बारे में तो मैं क्या बोलूं, मतलब वो पहला दिन मेरे को याद है अभी भी IITD का, जब राजेश ने डिस्क्लोज किया था कि वो सिंगर हैं। मैं वो राजेश के लिए कह भी नहीं सकता हूँ कि आपने इम्प्रूव किया है, क्योंकि शुरू से ही अच्छा गा रहे हैं और आज भी वो मेंटेन किए हुए हैं अपनी क्वालिटी को। बोली ये बात मैं अपने लिए बोल सकता हूँ, उनके लिए नहीं बोल सकता हूँ। बहुत शानदार। और किशोर कुमार की आवाज बहुत सूट करती है राजेश को और उन्होंने गाना भी बड़ा अच्छा चुना है। वेरी वेल सन। थैंक यू राजेश। थैंक यू, थैंक यू। Your voice is not audible, Meghna. Not audible. Not audible. Okay, I'll take over. Usha ma'am. Hello. Okay. I don't have words to say. I'm speechless totally, I can say. First of all, about Meghna's performance. This song, already once Meghna had enlivened this song, and today again she had given life to this song, and it is still echoing in mind. Meghna, I used to call her a sweet girl with a sweet smile and with lots of dreams, with lots of colorful dreams, which she is going to really achieve in her life. I'm damn sure.
I'm very much pretty sure about that. And one day you are going to become an accomplished singer also. Even that I'm marking my words now here. Then then about Rajesh, what to say? I was seeing that practically in front of me, and each word about whom you are singing, I don't know, but it was really, that girl is really in front of us through your voice. Lovely song and highly romantic, as usual. Thank you Shana. राजेश जी आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है आवाज, उस टाइम पे नहीं आई थी। अब आ रही है। नो, yes. चलिए विमल जी। जनाब, अब आपने मेरा नाम लिया तो पहले तो मुझे बताना, आपके बारे में बोलना पड़ेगा। मैं मेघना के बारे में बाद में बोलूंगा। जनाब, कितना बढ़िया रोमांटिक गाना गाया, और घेरते सब मेरे को हैं कि सारी शायरी रोमांटिक मैं करता हूँ। और जनाब ने इतना बढ़िया रोमांटिक गाना गाया है कि मैं बता नहीं सकता। बस मैं 2 लाइनें बोल के ही मतलब मुझे याद आ रही है बड़ी कमाल की। जो ना देते थे जवाब उनके सलाम आने लगे। रोमांस की हद देखिए, जो ना देते थे जवाब उनके सलाम आने लगे। वक्त बदला तो मेरे नीम पे आम आने लगे। क्या बात है, क्या बात क्या बात है। बदला मेरे नीम पे आम आने लगे। भाई साहब बहुत बढ़िया गाया। मेघना, आपने एक इतने डिफिकल्ट सॉन्ग को इतने सुंदर तरीके से निभाया है। तो यू आर रियली अकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। शैलेंद्र जी। मेघना का गाना बाबरा मन बहुत ही अच्छे से निभाया, उसने बहुत अच्छा गाया, सॉफ्ट तरीके से, और भाव उसके इतने अच्छे थे गाने की, लिरिक्स थे, और उसके साथ संगीत के साथ भावना का लय और ताल थी। वो मतलब उस गाने को शब्दों से जो लिरिसिस्ट कहना चाह रहा था, वो मेघना ने बहुत अच्छे से हम लोगों के सामने रखा। और मतलब बाबरा मन को सुन के मेघना की आवाज में मतलब बहुत पुराने समय का कोई क्लासिकल सिंगर सी याद दिला गया, कि जैसे पुराने क्लासिकल सिंगर गाते थे गाने को, उस स्टाइल से गाया। बहुत अच्छा। मेघना निश्चित रूप से अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगी। और जैसा कि उषा जी और विमल जी ने बोला कि विश फॉर हर टू बी अकम्प्लिश्ड सिंगर, वी ऑल विश फॉर दैट। एंड बहुत जल्दी हम लोग ये कह पाएंगे कि मेघना जी हमारे बीच से ही गई हैं। देखो वो कितनी बढ़िया सिंगर है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड राजेश जी की तो क्या कहना, मैंने पुराने जो आपके रिकॉर्डिंग्स थी यूट्यूब पे वो 1-2 देखी, तब मुझे पता चला कि हमारी अंशी के पापा गाने भी बहुत बढ़िया। और उषा जी जो कह रही थी कि गाना इतना रोमांटिक था, गाना जो सेलेक्ट किया ना राजेश जी ने, मतलब राजेश जी और हम लोग की उस उम्र के उस टाइम का गाना है, जो हर दिल में हर जुबान पर ये गाना होता था। जवान धड़कन जिसे कह सकते हैं, ये गाना था बहुत अच्छा। और किशोर जी ने जो गाया होगा गाना, और वो तो गाए ही, वो तो महान सिंगर है ही, लेकिन राजेश जी ने भी आज पूरी मतलब उस दिन ना दिलदारी के साथ गाना निभाया। बहुत अच्छा लगा, मजा आया। थैंक यू शैलेंद्र जी। हाँ जी रहेजा सर। मेघना, बाबरा मन सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्यूटीफुली आपने गाना गाया है ये। हालांकि मैंने ये गाना ज्यादा ये सुना हुआ नहीं है, ये बहुत पुराना गाना है ये, और जिस वे में आपने इसको गाया, दैट इज मतलब ऐसा लग रहा था कि यू आर वेरी प्रोफेशनली सिंगर जैसे इसको गाते हैं। तो इसी टाइप का ही लग रहा था कि भाई बहुत अच्छा गाना लग रहा है। तो आप इस टाइप के गाने गाते रहो, you will be definitely, you will be on the top position in singing. In respect of राजेश जी का तो कमाल ही है, वो तो मजा ही आ गया। मतलब इतना रात कली एक ख्वाब में आई तो देखते
बहुत अच्छा था, बहुत कॉन्फिडेंटली। और रोमांटिक सॉन्ग, आपने आप रोमांटिक सॉन्ग पकड़ने शुरू कर दिए। आपका आपका असर है सर। मेरा रेजा जी, सर आप रोमांटिक हीरो है हमारे। आपके गाने सुन सुन के हम भी थोड़ा थोड़ा गाने सुन लग सुन पड़े। के रोमांटिक होते हैं। बहुत अच्छा था, बहुत फैंटास्टिक। थैंक यू, थैंक यू। बहुत thank एंड मेघना का जो गाना था, लेट मी टेल यू, शी वाज नॉट गोइंग टू सिंग दिस सॉन्ग, बट व्हेन शी जॉइंड अस फॉर द फर्स्ट टाइम शी sang दिस सॉन्ग। और मतलब जो हमने, उषा मैम भी यही बोल रही थी, जब हमने ये गाना सुना था, अमेजिंग, मजा आ गया था उस दिन। तो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड हर कि कोई बात नहीं, गाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू मस्ट सिंग दैट सॉन्ग। तो शी एक्सेप्टेड दैट, एंड आई थिंक लास्ट मोमेंट के ऊपर शी ओनली डिसाइडेड कि शी विल गो विद द सॉन्ग, अदरवाइज शी वाज गोइंग टू सिंग सम अदर सॉन्ग, बट मैंने इंसिस्ट किया तो शी हैज sang दिस सॉन्ग। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुली sang मेघना। थैंक यू। Also राजेश अमेजिंगली sung। आई थिंक सबको आपने याद दिला दिए, अपने टाइम के अट्रैक्शन की आपने याद दिला दी। So nice. Thank you मेघना। सिमरत जी भी ज्वाइन किया है। अरे हाँ, सिमरत जी, कैन यू पुट ऑन योर वीडियो? हेलो। Good evening, everyone. हाँ, गुड इवनिंग सिमरत जी। एक्चुअली हम लोग छुप के नहीं बैठते हैं हम लोग सब वीडियो ऑन करके बैठते हैं। सो इन केस यू आर कंफर्टेबल। Actually, या I was not prepared for the video actually, but I Okay. really wanted to join the carnival, and Okay. I've enjoyed the songs, both the songs, marvelously sung by Meghna, and of course, you sung it so beautifully. And I wish all the best to Meghna, that she reaches the upper league, touches the stars, and the same for you also, sir. थैंक यू And सिमरत जी। next time I surely join with the video. अभी ऑडियो के साथ ही काम चला लेते हैं। ऐसे वैसे घर की बात है, यहाँ पर वी आर ऑल जस्ट लाइक ए फैमिली, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाटएवर वे यू वांट टू ज्वाइन, मे बी आफ्टर सम टाइम इफ यू वांट टू पुट ऑन द वीडियो यू कैन, क्योंकि हमें लगता है कि वो पीछे बैठा हुआ है तो मतलब वी आर नॉट एबल टू रिलेट, वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट ना। सो देख लीजिए, Okay. देख लीजिए, मे बी I'll आफ्टर try, सम टाइम इफ I'll यू try. वांट टू। ठीक है जी। ओके। And my apologies for joining a bit late. I had an important call from Dubai from my daughter. I had नो to attend इश्यूज, that नो call. इश्यूज सिमरत जी, नो इश्यूज, She called at 7:15 exact. नो इश्यूज, नो इश्यूज। हम लोग आराम से ज्वाइन I see. करते हैं, जब मर्जी ज्वाइन करें, जब मर्जी चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर, इट्स जस्ट लाइक ए फैमिली। Thank you for having me over here. थैंक यू सिमरत जी। ओके मेघना। या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरा इंटरनेट परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। या सुनाई दे रही है? परफेक्ट परफेक्ट सुनाई दे रही है। So let's move on to the next segment. अट्रैक्शन से हम अब प्यार की बात करते हैं। जब प्यार हो जाता है तो कैसे फील होता है, क्या महसूस होता है, और राजेश जी स्टार्ट करेंगे कि उनको कैसे लगता है। और वी आर ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। हम लोग सोच रहे थे कि डुएट करें, तो इस बार पहली बार ट्राई कर रहे हैं, छोटा सा एक डुएट हमारी तरफ से। लेट्स स्टार्ट। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। All the best. ऑल द बेस्ट। ओके, सो दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग, ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग, और आप में से कई लोगों का भी ऑल टाइम फेवरेट होगा ये। सो आई डिसाइडेड टू सिंग दिस सॉन्ग एज अ डुएट अलोंग विद मेघना। तो लेट्स स्टार्ट दिस। वी आर गोइंग टू सिंग विदाउट द कैरियोके ट्रैक। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से
चुन के मंजिल चलें और कहीं दूर कहीं काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चलें और कहीं दूर कहीं तुम घर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं जी में आता है तेरे दामन सर छुपा के हम रोते रहे जी में आता है तेरे दामन में सर छुपा के हम रोते रहे तेरी भी आँखों में आंसुओं की कमी तो नहीं तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं जिंदगी नहीं जिंदगी नहीं जिंदगी नहीं तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं रात को रोक लो तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं रात को रोक लो रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं जिंदगी नहीं जिंदगी नहीं जिंदगी नहीं तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं थैंक यू So I'll go ahead with my song. Yeah, you can go ahead with your song. So then we can go for the comments. All the best, Meghna. Some words before this song. Yeah, sure. ये गाना थोड़ा सा मतलब यूजुअली इंटरप्रेट किया जाता है एज अ सैड सॉन्ग, बट इट इज मोर अबाउट हाउ यू फील व्हेन यू आर लॉन्गिंग टू मीट दैट पर्सन. क्या जानू सजन होती है क्या
गम की शाम जल उठे 100 दिए जब लिया तेरा नाम क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम जल उठे 100 दिए जब लिया तेरा नाम क्या जानू सजन कांटों पे मैं खड़ी नैनों के द्वार पे निस दिन बहार के देखूं सपने चेहरे की धूल क्या चंदा की चांदनी उतरी तो रह गई मुख पे अपनी क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम जल उठे 100 दिए जब लिया तेरा नाम क्या जानू सजन जब से मिली नजर माथे पे बन गई बिंदिया नयन तेरे देखूं सजना धर ली वो प्यार से मेरी कलाइयाँ पिया तेरी उंगलियाँ हो गई कंगना क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम क्या जानू सजन Last time Meghna sang this song, nobody clapped. We were so engrossed. एकदम सब लोग खो गए थे, सब लोग खो गए थे. तो हमने we didn't even clap. थोड़ी देर बाद हमें realize हुआ गाना खत्म हो गया तो we should clap. Amazing song, beautiful. She sings it so beautifully. लता मंगेशकर का song बहुत अच्छा गाती हैं. Amazing. गहराइयों से आवाज आती है कहीं से। बहुत अच्छा। Okay. शैलेंद्र से स्टार्ट करते हैं। हाँ, शैलेंद्र जी से स्टार्ट करते हैं. क्यों? मैं तो शुरू हो ही गया था पहले ही। जो आप दोनों का डुएट सॉन्ग था, सबसे शानदार फिल्मों में से एक आंधी, इतना शानदार गीत था। और वो जो उस गाने के साथ वो जो डायलॉग्स आते हैं ना, वो याद आ रहे थे मेरे को। फिल्म का बड़ा एक फेमस डायलॉग था, तो मैं उसी का सहारा लेके बोलता हूँ कि वो कहता था ना, संजीव कुमार का डायलॉग था कि जब मैं 12 साल का था। तो जब मैं 12 साल से भी छोटा था, तब से फिल्मों का बड़ा शौक है, फिल्में बहुत उससे देखते आ रहे हैं। तो ये आंधी जो थी उस समय तो बैन हो गई थी, उस समय जो थिएटर्स में लगना बैन हो गई थी, पुराने लोगों को याद होगा। लेटर में हाँ जी, हॉस्टल डेज में कभी हमने टीवी पर शायद देखी थी। उसके बाद फिर अभी रिसेंट पास्ट में शायद विद इन 1 मंथ किड्स के साथ, बच्चियों के साथ बैठ के देखी। बच्चियों ने तब तक नहीं, अभी मिस कर रहे थे वो लोग, सब लोगों ने एक साथ देखा। बहुत वही याद आ गया पूरा गाना, इतना अच्छे से दोनों ने निभाया। और वो इतनी दूर दूर बैठ के भी, राजेश जी कहीं बैठे हैं, मेघना जी कहीं बैठे हैं,
और इतने अच्छे से तालमेल के साथ गाया कि लग ही नहीं रहा था कि इतनी दूर लोग बैठकर एक ही गाने को एक साथ गा पा रहे हैं। बहुत अच्छा, मजा आ गया गाने में। और मेघना जी का जो गाना था वो तो मैंने बोला ही कि एकदम इतनी अच्छी आवाज में, इतनी सधी हुई आवाज में मेघना गाती हैं गाना कि मतलब जिसका कोई कहने वाली बात ही नहीं। वाकई जो राजेश जी कह रहे थे क्लैप करना ही भूल गए थे, वो स्थिति थी कि मतलब इतने अच्छे से आवाज आ रही थी, इतनी गहराइयों से आवाज आती है मेघना की। और वो भी शायद मतलब मुझे नहीं लगता कोई म्यूजिक सपोर्ट या कोई करियोके वगैरह चल रहा था, कुछ भी नहीं था, केवल आवाज से पूरे गाने को कन्वे करती हैं। गॉड ब्लेस her, गॉड ब्लेस her, लॉट्स ऑफ थैंक्स। विमल जी, विमल जी। जनाब, अब आप दोनों ने इतना गाने, आपने पहला जो ड्यूट गाया बहुत ज्यादा दिल से और उस गाने के अंदर डूब के गाया। मेघना जी ने भी ये जो गाना गाया ये भी बिल्कुल भावना को छूता हुआ। पर मेरा जो एक चीज छूती है, आप लोगों के ने जिस दिन ने भी आंधी पिक्चर देखी, वो मैं उनको फिर दोबारा रिमाइंड करा दूं कि प्यार होने के बाद वो जुदा हो जाते हैं, जुदा होने के बाद अचानक मिलते हैं, तो वो जो दर्द है, उतने दिन जो सेपरेशन का दर्द है, उसको रिफ्लेक्ट करता है ये गाना, पहला वाला ड्यूट। और मेघना का गाना दूसरा भी कहीं दर्द से रिलेटेड है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप दोनों की पर्सनैलिटी में आप ऊपर से खुश दिखाकर, हंसी दिखाकर जो आप गाने चुनते हैं, दे रिफ्लेक्ट योर डायरेक्टली योर पर्सनैलिटी। ये दो गाने राजेश जी ने चुने और ये दोनों की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। गाने प्यार के हैं, रोमांस के हैं, पर रोमांस के अंदर भी जहां दर्द है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। और मैं कहूंगा कि आप दोनों ने बहुत डूब गए और बहुत बढ़िया गाया। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। थैंक यू। उषा मैम। That about the song from the movie Auntie, like Bimalji said, you know, meeting after a separation, it has lots and lots to say, volumes and volumes to say. There is nothing to say, just a meeting, just you know, just seeing each other. There will not be the need of words at all, and that is an unforgettable moment. So that feeling of meeting after a separation, that feeling is totally given through the song, through the voice of both Rajesh and Meghna. And second one, which is sung by Meghna, again, the dard of longing for someone. That is also an undefinable experience of love. So even that feeling has been, with all its deepness or depth, has been conveyed through your voice. So that there lies the success of a singer. We were all totally engrossed in your song. This is what I wanted to say. Thank you, Usha ma'am. राकेश जी। जो आप दोनों ने मिलके डुएट गाया है आंधी फिल्म का, यदि किसी को नहीं मालूम हो, वैसे सभी को पता है, यदि किसी को नहीं मालूम हो कि इस गाने के लिरिक्स किसने लिखे हैं, यदि वो इस गाना को सुन ले तो इतने, मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल फीलिंग है, इतने अच्छे लिरिक्स सिर्फ गुलजार साहब ही लिख सकते हैं, और शायद आप लोग एग्री करेंगे इस बात को। तो मैं सबसे पहले तो गुलजार साहब को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इतना सुंदर गाना, लिरिक्स इतने शानदार हैं इस गाने के, बहुत ही बढ़िया है। मतलब गाना जो आप लोग दोनों ने मिलके चुना है, बहुत शानदार गाना चुना है। और ये कॉन्सेप्ट भी ज्यादा यूज नहीं हुआ हमारे प्रोग्राम में, डुएट्स का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ शायद एक आध किसी ने गाया होगा पहले, मुझे याद भी नहीं है, किसी को भी याद नहीं है। आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये बहुत सक्सेसफुल है। और ये कहना बड़ा मुश्किल था कि दोनों में बेहतर कौन है, कौन 19 है और कौन 20 है, और कौन 20 है और कौन 19, दोनों एक से एक बढ़ के कलाकार हैं, दोनों की आवाज बहुत अच्छी है।
So it was a very successful experiment of duet on this platform. So congratulations. Thank you. अब आते हैं मेघना जी का जो गाना था, सेकंड सॉन्ग जिन्होंने गाया, ये मेरा एक बहुत मनपसंद गाना है और ये वो आर डी बर्मन का म्यूजिक है इसमें, बहारों के सपने का फिल्म से। ये गाना सिंगर को चांस देता है अपना पूरा पोटेंशियल दिखाने के लिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और फिल्म में लता जी ने पूरा पोटेंशियल, वो तो खैर एक्कम्प्लिश सिंगर है, लेकिन मेघना ने भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी है, अपना पूरा सिंगिंग पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किया इस गाने। और ये गाना था ही वैसा कि इसमें आप पूरा पोटेंशियल दिखाने का अवसर दे रहा था ये गाना। तो आपने मेघना बहुत सुंदर गाया, पूरा पोटेंशियल एक्सप्लॉइट किया एंड रियली हैट्स ऑफ। आई वाज सो इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। रहेजा जी, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, बहुत दोनों ने मिलके बहुत मार्वलस गाना गाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत पुराना गाना है ये। मैंने ये वाली जो फिल्म है मैंने देखी थी 1977 के अंदर। तो और इस गाने के अंदर कितनी डीप फीलिंग है और दोनों ने मिलके उसको कितनी फीलिंग के साथ गाया। बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। मेघना, योर सॉन्ग तो फुल ऑफ, जैसे फीलिंग उसके अंदर जैसी थी, इस गाने के अंदर जितनी फीलिंग है उतनी आपने पूरी एक्सप्रेस करी है इस फीलिंग को। तो बहुत जैसे एक अच्छे सिंगर, मार्वलस सिंगर गाते हैं, वैसे आपने बहुत अच्छे से इसको निभाया और अपनी डीप फीलिंग इसके अंदर लेके आए हैं, जिस गाने के अंदर है ये। Thank you, रहेजा जी। I think we are joined by Miss Kanishka also. Kanishka, if you, I would request you can put on your video. Hello. Kanishka ji, you can put on your video, please. I am actually out, so won't be able to put my video on, but I missed the songs. I joined No when issues. No issues. it We have finished. still many songs left. So you will get the I would opportunity. love to hear. I would love to hear. I'm really unfortunate that I missed, and everybody is praising so much. So I'm sure you and Miss Meghna have done a wonderful job. I would love to hear. Definitely. Okay. So let me tell, Kanishka Tyagi, she is an advocate in Delhi High Court, and she is joining us for the first time. And we are in a group, actually, a group for books and stories. So I thought, let me invite people who have got interest in arts, books, so they would maybe like what we do on this platform, poetry and singing and music. So welcome, Kanishka ji. Thank you so much. I'm hoping that I can contribute something to the group, and it will be a good journey for me. Definitely, but for that you will have to put on your video next time, maybe. Because we are not able to connect with people if they, we don't see face to face now, so it becomes very difficult. Yeah, Chalo, sure. anyways, Kanishka ji, welcome. Thank Okay, you. Meghna, carry on then. Next. Would you like to share something? Pardon? सिमरत जी रह गए। अच्छा, सिमरत जी ने सुना है कि वो भी वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हैं। Okay. Meghna, that song was awesome, simply awesome. The which you picked up, and your duet with Rajesh was fabulous. But that song, Rajesh was so right in saying that we forgot to clap. We were so mesmerized by it. It just transports you to a different world. God bless you, Meghna. And Rajesh, it was super listening to the duet with Meghna. It was super listening to you. Thank you, Simran. I'm just a novice. I'm just a layman. So I can't, find make out the very fine nuances, but I enjoy music. So I loved listening to the songs. Thank you, Simran ji. Great job. राजेश जी, मेरे को दो लाइनें याद आ रही हैं। ये दो लोग आप भी मिस कर रहे हैं, वीडियो ऑन नहीं किया हुआ, उनके अपने अपने सर्कमस्टांसेस हैं।
पर इसके ऊपर 2 लाइनें मैं चाहूंगा कि ये लोग भी सुने और आप भी लोग सुने कि गर देखने की चाह है तो नजरें गड़ाए रख। गर देखने की चाह है तो नजरें गड़ाए रख, चिलमन हो या नकाब सरकती जरूर है। क्या बात है, क्या बात है। Awesome. नहीं, बट आज की So डेट में सर beautifully put. नकाब को निकालना अलाउड नहीं है ना सर, फाइन हो जाता है। नकाब उतारना तो बाहर अलाउड नहीं है। चलिए, थैंक यू। ओके मेघना। ओके, सो थोड़ा अनकन्वेंशनलिटी की तरफ मोड़ते हैं इस सेगमेंट को। जब whenever we listen to या फिर प्यार के बारे में जब सुनते हैं तो इट्स ऑलवेज हैप्पीली एवर आफ्टर, ये बहुत हमने सुना हुआ है। लेकिन बहुत सारे अलग अलग इमोशंस होते हैं प्यार में जिसके बारे में हम बात नहीं करते इतना ज़्यादा, तो ये सेगमेंट उसके बारे में है। एंड आई वुड लाइक राजेश जी टू स्टार्ट विद दिस सॉन्ग। थैंक यू मेघना। तो ये दिस सॉन्ग इज फ्रॉम अ वेरी ओल्ड मूवी 1957, प्यासा। ओके जी, एक बार थैंक यू। एक बार मैंने एक मेडली में गाया था ये, तो विमल जी ने खास रिक्वेस्ट किया था कि भाई पूरा सुनाओ या ना कभी, तो मैंने सोचा चलो आज ये पूरा गाते हैं। सो ये विमल जी की रिक्वेस्ट है जिसको मुझे ध्यान में, देखो इतने टाइम बाद भी ध्यान में रखा मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो यू कैन म्यूट योरसेल्फ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवाने का हाथ, हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो
यूं ही जी लेंगे, इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा, गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। थैंक यू। Okay, I think now Meghna will take over. Meghna is going to sing a beautiful song. या आपकी आवाज सुनाई दे रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रही है मेघना, गो अहेड। कि ये गाने के बाद मुझे पता नहीं हिम्मत नहीं हो रही है गाने की, बिकॉज आई एम इनटू कंप्लीटली डिफरेंट इमोशन आफ्टर लिसनिंग टू योर सॉन्ग। सो अब मैं जो गाना गाने जा रही हूँ वो एक अलग इमोशन की बात करता है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि देयर इज थोड़ा सैडनेस इन द लॉन्गिंग, दिस सॉन्ग टॉक्स अबाउट देयर इज जॉय इन लॉन्गिंग। मुझे दूर रहना है, मुझे वो डिस्टेंस चाहिए जिससे मुझे वो एंटिसिपेशन में बहुत मजा आता है। तो दिस सॉन्ग टॉक्स अबाउट द जॉय ऑफ एंटिसिपेशन, द जॉय ऑफ लॉन्गिंग। अभी नहीं आना सजना, अभी नहीं आना सजना, मुझे थोड़ा मरने दे, इंतजार करने दे, अभी नहीं आना। भेजियो संदेशा आपने ही आना, थोड़े दूर रह के मोहे तरसाना। अभी तो मैं चाहूं सारी सारी रात जगना, अभी नहीं आना सजना, अभी नहीं आना सजना, मुझे थोड़ा मरने दे, इंतजार करने दे, अभी नहीं आना। रुक रुक आना, धीरे धीरे चलना, भूलना डगरिया, रास्ते बदलना। अभी तो मैं चाहूं आस लगाए रखना, अभी नहीं आना सजना, अभी नहीं आना सजना, मुझे थोड़ा मरने दे, इंतजार करने दे, अभी नहीं आना।
अभी नहीं आना, नहीं नहीं आना। बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल, टू गुड मेघना, बहुत अच्छा। शैलेंद्र जी। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। मेघना तो भाई कहाँ किस लेवल पर ले जाती है महफिल को, पूरे को, मुझे कहना चाहिए। आज के ये जितने गाने अभी तक सुने हैं आप दोनों के ही, उसको मतलब सुन के मुझे वो याद आ गया जमाना जब रेडियो पे हम लोग छाया गीत या ऑल इंडिया रेडियो का तामिले इरशाद प्रोग्राम सुनते थे। एक से एक खूबसूरत गाने, क्या नगमे हैं साहब, नगमे एकदम से, और गाने का स्टाइल आप दोनों जो है राजेश जी का जो प्यासा फिल्म का गीत, एवर मतलब एवरग्रीन गाना, एवरग्रीन मूवी, और जो आवाज थी वो हेमंत दा की आवाज को भी राजेश जी ने उतनी खूबसूरती से निभाया जो अभी तक किशोर दा के निभा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत गाना है, और ये गाना जो है आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। बहुत अच्छा लगता है ये गाना हमेशा से, और पूरा गाना गाया। अब बिमल जी का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की राजेश जी से कि इस तरह का गाना गाने के लिए। और मेघना को एक बार फिर से दिल से बहुत दुआएं कि वो बहुत अच्छी सिंगर बने आगे चल के, और ज़्यादा अपने बड़े फोरम पर और बड़े लेवल पर प्रसिद्धि पाएं। बहुत अच्छा गाती है। और ये जो गीत था, मतलब मैंने पहली बार सुना मेघना जी का गीत, और वो जो उसमें जो था ना कि इंतजार को और लंबा करना है, और उसमें भी नायिका खुश है, तो वो याद आ गया मुझे कि जो बचपन में पढ़ते थे तो श्रृंगार रस में के 2 पार्ट पढ़ाए जाते थे, संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो हम लोग ये सोचते थे वियोग में श्रृंगार कहाँ से आ जाएगा, रस कहाँ से आएगा, लेकिन वो आज कंफर्म कर दिया मेघना ने एक बार फिर से कि वियोग में भी श्रृंगार रस होता है। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बढ़िया, दोनों लोगों का बहुत अच्छी मजा। थैंक यू शैलेंद्र जी। विमल जी। हाँ, सबसे पहले तो राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, और इन्होंने मेरी पसंद का मान रखा, और मैं इनसे इसके लिए आप सबसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि आपने भी अपने चारों तरफ महसूस किया होगा कि जो प्यार होता है 90% दर्द और जुदाई पे होता है, वही याद रखे जाते हैं किस्से। लैला मजनू, श्री फरहाद, जितने भी किस्से याद किए जाते हैं और जिसमें दर्द है, बात तो ये रोमांस की कर रहे हैं, प्यार की कर रहे हैं, पर उसमें प्यार का दर्द निकल के आ रहा है बाहर। इसीलिए ये सारे किस्से मशहूर हैं, और ये लोग दोनों ही बहुत दिल से गा रहे हैं, तभी ये कंप्लीट आर्टिस्ट है। और जब दिल से गाता है तो आप आइडेंटिफाई करते हो उस चीज से, आप उस प्यार के अंदर जो दर्द है उससे आइडेंटिफाई कर रहे हो, और आप दोनों ही बहुत सुपर गा रहे हो। और हेमंत जी का जो गाना गाया प्यासा का, वो तो कमाल गाया है। और जो गाना मेघना आपने गाया है, मैंने पहली बार सुना है। चाहूंगा कि इसके बारे में आप बताएं, कौन राइटर है, कौन गाने वाला है, किस पिक्चर का है। पर आपने बहुत ही खूबसूरती से गाया, हमने बहुत आपकी बात को एंजॉय किया कि देयर इज ऑल्सो इंतजार में भी बहुत मजा है। तो विमल जी, ये गाना एक्चुअली किसी पिक्चर का नहीं है, ये सोना मोहपात्रा ने गाया हुआ था। कुछ 11 या 12 साल पहले जब उन्होंने एक एल्बम रिलीज किया था, उसका गाना है। और उसमें अलग अलग पहलू है, प्यार के अलग अलग पहलू है, जैसे इंतजार में जो मजा है, फिर जो अगर रूठ जाते हैं या सेपरेशन है, उसमें जो अलग तरीके का इमोशन होता है। तो ऐसे उन्होंने अलग अलग इमोशन इसमें एक्सप्लोर किए हैं। तो ये जब गाना मैंने पहली बार सुना था, मुझे पता नहीं था मुझे इस गाने से इतना लगाव क्यों है, और 10 साल बाद मुझे पता चला कि मुझे वो इंतजार में मजा आता है। और मैं हूँ वैसी कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत इंतजार होना चाहिए, थोड़ा एंटिसिपेशन होना चाहिए, 24 घंटे साथ में नहीं रहना चाहिए। तो दैट इज बहुत अच्छे, जो मजा इंतजार में है वो वस्ले यार में कहाँ। क्या बात आप ये कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं?
बहुत बहुत शुक्रिया। लोपिता मैम ने ज्वाइन किया है। वेलकम लोपिता मैम, थैंक यू Hi, सो Lopita मच। गुड इवनिंग। अनम्यूट मैडम म्यूट करें, आप Unmute अनम्यूट करें। यस। हेलो जी, हेलो नमस्कार। हेलो, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार लोपिता मैम। नमस्कार लोपिता मैम, मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। नमस्कार ऑल ऑफ यू। अरे नमस्कार। मेरा कुछ हो रहा है कि मैं सिर्फ अपने आप को देख पा रही हूँ, दूसरे कोई दिख नहीं रहा है मुझे, मैडम इसलिए मैं आप ना एक मेरे से एक क्लास लो आप पहले, जूम अटेंड करने की। मैं आपको अभी कल, क्या आप मेरे टाइम दो मेरे को, मैं आपको आधे घंटे में पूरा ट्रेन कर दूंगा। आपकी हमेशा प्रॉब्लम रहती है। हाँ, अभी क्या करूँ बताइए। आप कोई नहीं दिख रहे, सबके नाम आ रहे हैं स्क्रीन पे और मैं स्क्रीन पे गैलरी व्यू पे हूँ। स्क्रीन पे नाम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आपको स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं सारे, सारे स्क्रीन नजर आ रहे हैं, तो इंटरनेट का सारे नाम प्रॉब्लम आ है। रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसी हाँ, कोई बात नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इंटरनेट वीक होगा आपका, बट हम आपको देख पा रहे हैं, आप हम देख पा रहे आपको हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। बाकी हम वीडियो भेज ही चलिए। देंगे अपना आपको। नहीं वो तो है। मैं जब आई ना, ज्वाइन कर रही थी, आई वाज ट्राइंग टू ज्वाइन, तब राजेश जी आप गा रहे थे बहुत सुंदर गाना, और वाकई जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला। वो गाना तो बहुत ही मस्त गाना है, और आपने इतना अच्छा गाया राजेश जी, यू सरप्राइज मी। अरे अरे अरे, थैंक यू सो मच। आज एकदम डूब के गाया आपने, एकदम फुल इमोशन, फुल अरे ऑन। वाह, क्या बात है, लोपिता मैम से आज ये सुनने को मिल गया। नहीं तो कान लगता खींचती है है हमेशा लोपिता मैम। दिल को कहीं ठेस पहुंचा है, आपको कहीं कुछ हुआ है क्या? आप एकदम गाने को मैडम मैं कह रहा हूँ ये मानते कब है। क्या मानते कब है। सही पकड़े हैं आप विमल जी, सही पकड़े हैं बिल्कुल दिल से। आज कुछ मामला तो कुछ और है। और मैंने मेघना को भी सुनती रही, पर मैं देख नहीं पा रही थी। एंड बहुत ही अच्छा गाना है, एल्बम का गाना है। कॉम्पोजिशन बहुत ही डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स एंड द थॉट ऑफ द सॉन्ग इज वेरी गुड। सोना महापात्रा का, एंड सोना महापात्रा हमारी गांव वाली है, उड़ीसा की है, तो इसीलिए वी टेक प्राउड इन हर, इन हर। सो थैंक्स फॉर सिंगिंग अ वेरी लवली सॉन्ग मेघना, बहुत अच्छा गाया विद लॉट ऑफ फील। Thank you, ma'am. You did justice to the song. Thank you so much, ma'am. Thank you so I much. wish I could see all of you यार, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम। ओके राकेश जी। मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग है, ये क्लासिकल सॉन्ग है, उसको आपने बहुत अच्छे से निभाया है। सो थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग। ओके, सॉरी उषा मैम, आई थॉट एवरीबडी वाज ओवर। Both of you sang so beautifully, not only beautifully, soulful way of singing. What is meant by soulful way of singing? It has been proven today. And Rajesh, your song was really, as everyone says here, बहुत दिल से आप गा रहे हैं आज today. आज sorry, बहुत अच्छा था. And Meghna, your song, I am hearing it for the first time. As you said, इंतजार का दूसरा face भी है. So that has been again beautifully shown through your words and through your voice. And the song was so beautifully done. Very nice. रहेजा जी। ओह, जाने वो कैसे लोग थे, हेमंत कुमार का गाना, और ये मुझे लगता है जगजीत सिंह ने भी गाया हुआ है ये, और आपने बिल्कुल डिट्टो वैसे ही फीलिंग के साथ गाया है ये गाना। बहुत मार्वेलस था, बहुत अच्छा लगा, बहुत कॉन्फिडेंटली। मेघना के गाने तो बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहे हैं आजकल, बिल्कुल डिफरेंट, और सुने हुए भी नहीं है कि ये वाले गाने। इंतजार काफी जो मतलब इसके अंदर काफी फीलिंग भी आ रही है, और मीनिंगफुल गाना था ये, बहुत अच्छा लगा। ओके,
थैंक यू रहेजा जी. तो मेघना. यस, बट बिफोर दैट राजेश जी, आपका गाना बहुत बढ़िया था. मैं आपके गाने के बाद सच बोलूं, मैं अलग इमोशन में चली गई थी और मुझे उस इमोशन से डिस्कनेक्ट करके ये गाना गाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बिकॉज देयर वाज सो मच डेप्थ और आपने इतने फीलिंग के साथ गाया. इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डिस्कनेक्ट. सो थैंक यू. थैंक यू मेघना. थैंक यू सो मच. So moving towards the last segment, अलग अलग इमोशंस एक्सप्लोर कर लिए हमने, प्यार के, रोमांस के, एंड बट वॉट एवर हैपन्स, कुछ भी होता है लाइफ में, जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे को एक ही बात कहते हैं, और वो हम इस गाने से बताना चाहते हैं. So we are going to try another duet, and I request Rajesh ji to start. थैंक यू मेघना. Okay ji, wish you all the best. थैंक यू बिमल जी. Now this is Meghna's favorite actually. Okay. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ. ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा.
कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, देना साथ मेरा वो हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, देना साथ मेरा वो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, देना साथ मेरा वो हमनवा। देना साथ मेरा वो हमनवा। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपनी बस में। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपनी बस में। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, देना साथ मेरा हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, देना साथ मेरा वो हमनवा। देना साथ मेरा वो हमनवा। Good night. I think we will ask straight away from Lopita ma'am. अरे नहीं नहीं, अभी सबका चेहरा दिख रहा है। मैं क्या बाहर बात गई है। और फिर अंदर आई, दिखा। क्या बात है, क्या बात। इसलिए मेघना मत छुपाओ, मैं देख रही हूँ तुमको। बहुत अच्छा गाया। और ये डुएट कैसे मैनेज किया? वो टाइम का लैग नहीं हुआ? दैट्स व्हाट आई एम वंडरिंग। ये नहीं टेक्निकल लोपिता मैम, आई टेल यू, मैंने अपना प्ले किया है, यहाँ पर अपना म्यूजिक प्ले किया, इसने अपना प्ले किया म्यूजिक। सो मैंने फिर साइलेंट हो गया, अच्छा, मतलब अलग-अलग? म्यूट कर लिया, अलग अलग अपना 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 स्टेंजा गाया हमने। वो बार बार नहीं कर सकते थे ना, एक बीच बीच में नहीं हो सकता, बट एक एक स्टेंजा हमने पकड़ के अलग अलग गाया। यस, पर बढ़िया बढ़िया हुआ। इट वाज वेरी नाइसली कोऑर्डिनेटेड, वेरी नाइसली। लग नहीं रहा था अलग-अलग। आप कॉन्सर्ट ऐसे करेंगे तो फिर मैं भी सोच सकती हूँ। मेरे को, मैं टेक्निकली इतनी साउंड नहीं हूँ जो आप पहले बोल चुके हैं। अरे बट नहीं बहुत अच्छा गाया। गाने का जो रोमांटिक मूड है एकदम, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हु आर मैरिड और हु आर
मैरिड, ये गाना हर कोई, इट इज एन एंथम फॉर द मैरिड वुमेन एंड मैरिड मैन, है ना। जब Definitely. कोई साथ बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ये सबकी मांग है, साथ तो देना पड़ेगा ना। तो बहुत बढ़िया गाना है एंड बहुत अच्छे से निभाया मेघना ने, बहुत अच्छा निभाया मेघना, ऐसा नहीं है, वेरी नाइस। या एंड राजेश जी तो आज कुछ और ही तेवर है उनके, बहुत ही बढ़िया So गा रहे nice. हैं। So nice, Suksha मैम. मैं तो लोकता मैडम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कमेंट्स के लिए एक दो लाइनें आप ही गुनगुना दीजिए इन दोनों के गानों पर। मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा. कुछ याद आ रहा हो। नहीं नहीं, इन यही गानों गाना के सुना ऊपर। देना, इसी का स्टेंजा सुना दीजिए, सेम मजा आ जाएगा. विदाउट stanza क्या? म्यूजिक मैं, नॉट रिक्वायर्ड म्यूजिक, नॉट हाँ। रिक्वायर्ड. आपके साथ दिए तो म्यूजिक की नहीं, जरूरत ही नहीं है. अच्छा, लिरिक्स, ओके, की लिरिक्स बात देख कर- लीजिए प्लीज प्लीज हाँ, प्लीज मैं खाली लिरिक्स निकाल लेती हूँ। प्लीज प्लीज मैम. बस 2 लाइन सुना दूंगी मैं। हाँ जी, सो नाइस। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, वो हमनवा, तुम देना साथ मेरा, वो हमनवा। चलिए, लिरिक्स मिल गया, मैं खाली अंतरे का 2 लाइन सुना देती हूँ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, वो हमनवा, तुम देना साथ मेरा, वो हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, वो हमनवा, तुम देना साथ मेरा, वो हमनवा। बहुत ही बढ़िया गाना है, ब्यूटीफुल कंपोजिशन, क्या बात है. मीनिंगफुल है, रोमांटिक मूड में ले आता है, बिल्कुल। शैलेंद्र जी लोपिता मैम से पहली दफा मिल रहे हैं मेरे ख्याल से. मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ. शैलेंद्र जी, बिल्कुल 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 जी, लोपिता जी, मैम, नमस्कार। शी इज ए प्लेबैक सिंगर. इन्होंने 19 लैंग्वेजेस में मूवीज में गाया हुआ है एज ए प्लेबैक सिंगर. ये 30 साल से करीब गा रही है. 30 साल से करीब गा रही है. और कुछ इको आया मेरा. बाल पक गए गाना गाते गाते, बाल पक गए हमारे। ये वैसे ओडिशा को बिलोंग करती हैं, बट प्रेजेंटली शी इज इन मुंबई. और शैलेंद्र जी, उषा, लोपिता मैम, शैलेंद्र जी ज्वाइंट कमिश्नर हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में. अरे ये हाँ, ये nice. यस, बट बाय क्वालिफिकेशन ही इज आल्सो एन इंजीनियर. ओके, तो यही एनसीआर में है ये. मैं अपना परिचय दे दूं Please. लोपिता मैम को. आज मेरा जो कनेक्शन है आज के ग्रुप से वो ये है कि मेरी बेटी और राजेश जी की बेटी दोनों क्लासमेट्स रहे हैं स्कूल टाइम तक, 12th तक. तो आज जो आप जो कह रही थी ना शुरू में कि इन दोनों ने कनेक्ट करके कैसे गाया डुएट, राजेश जी कहीं और बैठे हैं, मेघना जी और बैठे हैं, इसके पीछे का रहस्य ये है कि मैंने अभी 2 साल या 3 साल पहले अपनी बेटी और इनकी बेटी का एक डुएट देखा इसी पे, जब ये कोविड वाला टाइम चल रहा था तभी दोनों का. अच्छा। तो मैंने कहा यार, तुम बेटी से अपनी से बोला तुम अंशी के यहाँ तो गए नहीं थे और ना अंशी यहाँ पे आई, तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग कैसे हुई है सारी, और दोनों अपना इंस्ट्रूमेंट भी चल रहा है, गाना भी चल रहा है. तो वहां से ये पता चलता है कि ये राजेश जी हमारे कितने टेक्निकली साउंड हैं, और अगली जनरेशन को भी इन्होंने एकदम ट्रेंड कर दिया है, बिल्कुल बहुत अच्छे से.
सही है, बहुत सही है। हम अरे लोग बिल्कुल पीछे हैं उल्टा थोड़ा है, सी। बिल्कुल उल्टा है शैलेंद्र जी, ये तो ये बिल्कुल आप उल्टा है। बताएंगे वो तो बच्चे हम उनके सामने जीरो हैं बिल्कुल। हमारे को तो जो ये हेल्प रिक्वायर्ड ये होती बात है भी सही है, टेक्नोलॉजी में, उनके पास जाते हैं हम। उन्हीं से पूछते हैं। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। और अभी की जो जी जी। परफॉर्मेंस थी, ये अभी की जो परफॉर्मेंस थी, उसमें दोनों का, राजेश जी और मेघना जी का तो परफॉर्मेंस था ही, लेकिन उसके बाद जो बिमल जी के इसरार पर लोपिता जी ने जो टांका लगाया है ना उसमें, वो सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्या गाना। बात है। दोनों ने बहुत अच्छा गाना गाया था और उस पे मजा आ गया लोपिता जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। राकेश जी। राजेश, आज जो आप दोनों की जो जोड़ी जमी है, उस जोड़ी ने धमाल कर दिया है। मतलब जिसको वो सुपर हिट जोड़ी बोलते हैं ना, दो सिंगर्स की, एक मेल सिंगर और एक फीमेल सिंगर, सुपर हिट जोड़ी है। और यदि मैं दिल्ली वाला हूँ, भले ही मैं सिंगापुर में बैठा हूँ इस वक्त, लेकिन मैं हूँ तो दिल्ली वाला, तो दिल्ली की लैंग्वेज में बोलूंगा कि फट्टे चक दिते उसी दोनों ने। इट वाज सो गुड, मतलब ऐसा, इट वाज लाइक ए ट्रीट टू द ईयर्स। जितनी अच्छी आवाज है आप दोनों की, जो गाने आपने सिलेक्ट किए हैं, जिस तरह से गानों को निभाया है, today's concert was like a treat to our ears, so it was a wonderful experience। आप दोनों को बधाई, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था और बहुत ही अच्छा गाया। और जो बात मैं बोलना चाहता था लोपिता जी के लिए कि वो वर्ड मेरे छीन लिए शैलेंद्र जी ने, तो मैं दूसरे वर्ड यूज करूंगा कि लोपिता जी ने उसको कॉम्प्लीमेंट किया है विद आइसिंग ऑन द केक। सो थैंक यू लोपिता जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। विमल जी। जी हाँ जनाब, ऐसा है कि सबसे पहले तो राजेश और मेघना को कहूँगा कि भाई आपने सुपर गाया, बहुत ही भावनाओं पूर्ण और बहुत ही अच्छा निभाया। और बहुत बहुत शुक्रिया लोपिता जी, आप हमारे को ऐसे ही इंस्पायर करते रहे, आते रहे। और जब जब आप कुछ हमें सुना देते हैं और हमें प्रेस करते हैं तो वी आर ऑन स्काई। हमारे को तो जैसे आज राजेश को फील हो रहा था, ऐसे ही मुझे फील हुआ। जब आप हमारी सच्चे दिल से तारीफ कर देते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हम वाकई में अच्छा गा लिया, आज तो कमाल हो गया। तो आज राजेश और मेघना ने तो कमाल किया। और स्पेशली ये जो थर्ड इसने पेश किया है गाना मेघना ने, वो राजेश जी को पूरी टक्कर दी है। राजेश जी बहुत अच्छा गा रहे थे, पर ये थर्ड इसने सॉन्ग गाया, पूरी टक्कर से गाया। थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो सकता है, पर वो जो गा रही थी मेघना, दैट वाज सुपर। और लोपिता जी आप तो कमाल हैं ही। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ईश्वर का कि आपसे मुलाकात हो गई, और वो जो हम लाइव मिले थे उसका तो कहना ही क्या है। वी आर वेटिंग फॉर यू। डोसा के साथ मजा आ गया था। उषा मैम अनम्यूट कर लीजिए। Even I want to say the same thing. Both of you sang so well, and such an admirable compatibility is there between both of you. That is the thing which made this song so in a mesmerizing way. It was appealing to us, and the selection of the song is also highly commendable. And in addition to that, when Lopita ma'am had added her sweet voice onto this, it is like a, what to say, it is like a blessing for us. Such a blessed moment it was. So sweet of you, Radhe. My pleasure always. Meghna, we have got time. We were thinking कि वो last गाना नहीं कर पाएंगे, but I think we have got the time. So let's do that. तो आज का आखिरी गाना, तो यू कैन काइंडली म्यूट योरसेल्फ। ये हम सोच रहे थे शायद टाइम नहीं मिल पाएगा, तो वी विल नॉट डू दिस। सो ये मैं गा रहा हूँ, बड़ा पुराना गाना है, राज कपूर की पिक्चर का, राज कपूर एंड वहीदा रहमान। अगर आप गेस कर सकते हैं तो ओके।
चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया दो कनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया दो कनिया आहे, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बजरवा दो कनिया। उड़ उड़ बैठी बजरवा दो कनिया आहे, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कनिया। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कनिया आहे, बीड़ा के सब रस ले लियो रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। थैंक यू। ये एक्चुअली राजेश जी गाना नहीं चाहते थे, सुना रहे थे गाने से। नहीं, मैं कतरा नहीं रहा था। आई थॉट कि इतना टाइम होगा नहीं कि विल हैव 8 परफॉर्मेंसेस। जब इनको मैंने प्रैक्टिस में गाना सुना, मैंने बोला ये आपको गाना ही है, कुछ भी हो जाए हम एक्सटेंड कर लेंगे, लेकिन गाना तो पड़ेगा। फुल ऑफ एक्साइटमेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रही। बढ़िया बढ़िया, मस्त। थैंक यू लोकिता मैम, थैंक यू सो मच। पता नहीं सुरमुर लगे कि नहीं लगे आज आपका काम नहीं लगे, आप सही। थोड़ा बहुत 19-20 जो होता है उसको नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि जो स्पिरिट था आपका गाने का वो इम्पोर्टेंट है। दैट वाज इम्पोर्टेंट। बाकी गाने ने बाकी डांस ने कवर कर दिया। बाकी डांस ने कवर कर दिया, सही। थैंक यू so बढ़िया much. बढ़िया, नाइस वे टू एंड विद अ फेस्टिव मूड, यू नो। संडे का इवनिंग है। यस, सो नाइस वे टू एंड। थैंक यू वेरी गुड। शैलेंद्र जी, हाँ, आपकी अनीता से बात होती रहती होगी? एक मिनट, ये बाद में बात कर लेंगे। रहेजा जी बाद में करते हैं, ये बाद में बात कर लेंगे। अच्छा, मैंने कहा वो उसने देखा भी आपको, कहती मेरी कल परसों तो बात हुई थी। चलो बाद में बात कर लेंगे। यस यस, बात करते हैं। अभी कॉन्सर्ट का मजा लेते हैं। हाँ, कॉन्सर्ट पे जी ऐसे मुकाम पे लेके पहुंच गया आपका ये गीत, जैसे वो कोई प्रोग्राम होता है ना, जब स्टेज पे जब फाइनली लास्ट में आके पूरी ऑडियंस को हिला देने वाला, झूमने लगे पब्लिक, वो वाली पोजीशन में आप दोनों ने पहुंचा दिया उसको, पूरी महफिल को। और ये फिल्म तो आपने बताई दी, तीसरी कसम। मुझे इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात मैं विमल जी की बात में जोड़ना चाहता हूँ। विमल जी के आज लगातार कमेंट्स आ रहे थे
कि वो दर्द से कुछ बात है राजेश जी की, मेघना जी की गाने इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो वो दो पोइट्स की मुझे लाइनें याद आ गई। एक तो पीबी शैली की लाइन पढ़ी थी स्कूल टाइम में कि अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस ऑफ सैडेस्ट थॉट। उसी को जब बाद में गाने में सुना तलत महमूद की आवाज में, शैलेंद्र की लिखी हुई लाइन थी वो भी, जिन्होंने तीसरी कसम बनाई थी, हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते। तो विमल जी ये तो दर्द है, उसी के गाने निकलेंगे, उसी की कविताएं निकलेंगी। बिल्कुल बहुत मजा आ गया साहब, मजा आ गया साहब। आज बेड पे बैठा हुआ था राजेश जी, नहीं तो कसम से बता रहा हूँ अगर खड़े होके सुनने वाला होता तो आप मेरा मतलब जो भी डांस मेरे को उल्टा सीधा आता है वो डांस देख लेते आप मेरा। बहुत मजा आ गया, गाना बहुत शानदार, मजा आ गया। विमल जी। श्रीवास्तव जी, मतलब राजेश से, मेघना से, ग्रुप के सभी मेंबर से मेरा रिश्ता जो है वो दिल का है। मैं ज्यादा दिमाग से नहीं ज्यादा अपने कमेंट्स देता, बहुत ही भावनाओं में और दिल से ये दोनों लोगों ने गाने गाए, और जो चुने वो इनकी मन स्थिति को दर्शा रहे थे। मैंने इसीलिए कहा कि हम जब अपनी शायरी या गाने गाते हैं लोपिता जी, वो रोमांटिक, लाइट रोमांटिक होते हैं। वहां तक ये इतने मैच्योर हैं, ये इतने मैच्योर वो गाने गा रहे थे कि जब रोमांस और प्यार दर्द के उधर पहुंचता है तो वो ग्रेटनेस की तरफ आ जाता है। आप भी जानते होंगे कि जितने भी लव स्टोरीज हुई हैं वो हमेशा ट्रेजिक एंड होता है, उसमें दर्द की भावना ज्यादा होती है। अगर मिलन हो ही जाए तो फिर उसमें तो सारा वो तो नॉर्मल कोर्स हो गया ना भाई, वो याद कहाँ रहेगा। तो ये जो चीजें दर्शा रहे थे, जिन जिन डायमेंशंस को ये बता रहे थे, दे वर सिंपली ग्रेट। और बाद में तो राजेश जी ने गुलदस्ता पूरा ही कर दिया। जो मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है वो, अगर मैं सैड सॉन्ग गा रहा हूँ या एक ही लूप में गा रहा हूँ तो उसी वक्त साइमल्टेनियसली मेरे को अगर कैसा गाना पड़े ना एकदम लाइट या इस तरीके का, उस स्पीड का, मैं नहीं कर सकता। और राजेश जी ने उस चेंज ओवर को ऐसा प्यारा निभाया है कि मजा आ गया। सो नाइस, थैंक यू। ओके, उषा मैम। The last song was such a showstopper, I can say. Totally that dance करने वाले का मन लग रहा था. It was very nice, lovely song. Thank you. राकेश जी। राजेश, इस वक्त यहाँ पर 11 रात के 35 हो रहे, 11:35। और आज मैं पूरा दिन बेटे और फैमिली के साथ बाहर घूम रहा था, तो मुझे लग रहा था कि आज के प्रोग्राम में मैं अपनी आंख कैसे खोल के रखूंगा बिना चाय वगैरह पिया। चाय में पी नहीं पाया किसी वजह से, लेकिन आपका जो लास्ट गाना था उसने मतलब मेरी सारी थकान, सारी सुस्ती भगा दी। इतना मस्ती भरा नंबर, ये फॉर्म आपने कभी दिखाया नहीं था पहले अपना, आज पहले। हाँ, मतलब इतनी मस्ती में, मतलब ऐसा इतनी मस्ती की सारी लिमिट तोड़ दी आज आपने। ओह शाबाश। और इस इवेंट को मतलब मेमोरेबल बना दिया है आपने इस गाने के द्वारा क्लोज करके। बहुत ही शानदार, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है इसको इससे ज्यादा कुछ बोलने के लिए। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू एवरीवन। मेरे ख्याल से आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक मेघना, yes, for those amazing performances and carrying the event, anchoring also. Although she is quite busy person, मतलब कोई टाइम नहीं मिलता इसको कभी भी। We thought कि आज हम प्रैक्टिस करेंगे, बट पूरा दिन she didn't get the time। और बीच में भी I mean एक बार हमने प्रैक्टिस किया संडे को, एंड एक बार काफी लेट हमने किया, तो अदरवाइज शी डजंट गेट द टाइम। उसके बावजूद भी शी कैरीड ईच एंड एवरी सॉन्ग ऑफ हर्स सो वेल। बहुत अच्छा गाया इन्होंने, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मेघना फॉर द ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस, एंड थैंक यू एवरीवन। उषा मैम, शैलेंद्र जी, राकेश जी, बिमल जी, रहेजा जी एंड लोपिता मैम। थैंक यू लोपिता मैम फॉर ज्वाइनिंग। लोपिता मैम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था काफी बार, बट शी सेड ओके आई विल जॉइन फॉर सम टाइम। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बट मेरे ख्याल से ऐसा ना रहे कि लास्ट हम फिनिश करें लोपिता मैम के गाने से। इफ वी कैन स्पेयर, मजा आ जाएगा। लोपिता मैम एक गाना से आप फिनिश करते हैं, हम लोग विल वाइंड अप विद योर सॉन्ग, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल। हाँ, मैं थोड़ा एक अंतरा गा देती हूँ। हाँ, श्योर।
कुछ बोल रहे थे? हाँ, कुछ बोल रहे मेघना, थे यू कैन मेघना? से। मेघना बोल रही Yeah, थी। yeah, I was just saying राजेश जी के को थैंक यू सो मच। मेरा मतलब प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिलता था, लेकिन आप बहुत अच्छे थे मेरे टाइमिंग के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड वंस अगेन, जैसे मैंने बिगनिंग में भी बोला था, थैंक यू फॉर दिस स्पेस, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया स्पेस है। एंड आई थिंक हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पे हैं, एंड इट इज सो वंडरफुल टू इंटरैक्ट विद सच अ वेरिड एज ग्रुप एंड नॉट क्योंकि बचपन से कैसे होता है, स्कूल में कॉलेज में भी इंटरैक्ट विद द सेम एज ग्रुप, और वो सेम डायमेंशन रहता है, सेम वेवलेंथ रहता है ऑलमोस्ट। बट जब वेरिड एज ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो कुछ अलग सीखने को मिलता है, कुछ अलग थॉट समझ में आते हैं। It is beautiful to be a part of this space. Thank you. Thank you so much, Meghna. So nice. Well said, Meghna. It's a fact, actually. It's a fact. Yes. I will end with a very nice song dedicated to all of you. All of you, and this is a Rafi Saab Your song. savings is on with an iPhone 13 and rupees 1 lakh cashback daily. Hurry, order now. Wait. So ये गाना मेरा बहुत फेवरेट है, और आप लोग गेस भी करेंगे जब मैं शुरू कर दूंगी, आपको पता चलेगा। मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहां भी जाए राहे हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहां भी जाए राहे हम संग हैं। मेरे तेरे दिल का था एक दिन मिलना, जैसे महारानी पर फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का था एक दिन मिलना, जैसे महारानी पर फूल का खिलना। वो मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहे हम संग हैं। तेरे दुख अब मेरे सुख अब तेरे, तेरे दो नैना चांदनी सूरज मेरे। तेरे दुख अब मेरे सुख अब तेरे, तेरे दो नैना चांदनी सूरज मेरे। वो मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहे हम संग हैं। रफी साहब का गाना लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत गाती हूँ ये गाना। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया, साथ
हाथ ना ये छूटेगा, आपके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। वो मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। वो जहाँ भी ले जाए जाए हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। वो जहाँ भी ले जाए जाए हम संग हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बर्थडे कमिंग, 24 दिसंबर को उनका बर्थडे आ रहा है और उनकी फैमिली ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उड़िया गाना जो रफी साहब ने गाया है, ओनली 2 songs composed by my late uncle शांतनु महापात्रा, तो मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप ये गाना रिकॉर्ड करके भेजिए, हम अपनी ऑनलाइन शो में आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो यू विल ऑल सी माय वीडियो वेरी सून। आई हैव संग रफी साहब उड़िया नंबर, सो आप लोग 24 तारीख को देखोगे। सेंड यू द लिंक ऑफ द शो। ओके, ब्यूटीफुल, थैंक यू जी। मेरे ख्याल से शैलेंद्र जी ने आज पहली दफा सुना है लोपिता जी को। जी बिल्कुल। ये तो वो जो पहले आपका एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाया था आपने उस गाने का, जो मेघना जी और राजेश जी ने गाया था, उसके बाद ये पूरा गाना सुन के तो मतलब ऐसे मिल गया जैसे लॉटरी लग गई हो मेरी तो कोई। और प्रोग्राम में जैसे होता है ना कि एक कोई प्रोग्राम चलता है, तो जो अभी राजेश जी का गाना था वो बिल्कुल ऊंचाई तक पहुंच चुका था प्रोग्राम, कि यहाँ पर एंड किया जा सकता है प्रोग्राम। उसके बाद क्या होता है कि जब स्टेज पर इस तरह की परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो लास्ट में एक चीज होती है कि जब सारे परफॉर्मर्स या पार्टिसिपेंट्स कम दे चुके होते हैं परफॉर्मेंस, तो बाद में जज साहब को बुलाया जाता है स्टेज पे और उनसे ये कहा जाता है, तो लोपिता मैम की जो ये परफॉर्मेंस थी बिल्कुल वही याद दिला गई वो परफॉर्मेंस। साहब जज साहब तो सब पे भारी पड़ेंगे साहब, कोई भी बढ़िया परफॉर्मर हो, कितना भी अच्छा हो, तो जो है वाकई वंडरफुल वॉइस यू हैव। एंड ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप उड़िया के उसमें पूरी तरह से वहाँ गाते भी हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से अपने उड़िया समाज में। हमारे डिपार्टमेंट में भी कई ऐसे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो वहाँ से कनेक्टेड हैं, और बड़ा अच्छा उन लोगों की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है उन लोगों के बीच में। अभी रिसेंटली एक ने VRS भी लिया है हमारे साथी ने, तो आई विल डेफिनेटली डिस्कस विद देम। आपको जानते होंगे वो लोग, जहाँ तक मुझे लगता है। बिल्कुल जानते होंगे, मेरे मामा जी को भी जानते हैं। इनफैक्ट दिल्ली में बुलाते रहते हैं गाने के लिए। मैं काफी ये पैंडेमिक में नहीं गई हूँ, पैंडेमिक में मैं सिर्फ फ्यूजन ग्रुप से मिली हूँ। अरे सो लकी, वी आर सो लकी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी। मैं फॉलो करूंगा आपको यूट्यूब पे, तलाशूंगा। थैंक यू वेरी मच। सो मेरे ख्याल से दिस वाज द एप्ट सॉन्ग फॉर टू एंड द इवेंट, क्यों सर? So thank you so much Lopita ma'am. Thank you. And thank you everyone. So have a great night. Thank all of you. Bye. Thank you. Good luck to all. Thank you. Good luck. Thank you very much. लोपिता जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Always my pleasure जी, आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए I'm always there. So nice of you. Thank you. Nice. Thank you Lopita ma'am. Thank you everyone. Thank you. Thank you Meghna. Bye Okay, everyone. Bye, good night. Good night. Good night.